We have already done this. Yes. So we were analyzing this radial part equation, and the ground state we have already analyzed. We will analyze for the first excited state today, but unfortunately, the plot for first excited state is not here, so we will plot it by ourselves. So let us have a little bit recall that this is the radial part wave function, and this is the angular part which we termed as the spherical harmonics, and the product of these two gives you the complete wave function. And we also discussed that for the ground state, for the 1s orbitals, all s orbitals, the wave function is basically dependent on the radial part, and the contribution from the angular part is only a constant for all the s orbitals. So we are here for the ground state. N is 1, L is 0, and M is also 0. This is the wave function. This exponential z r by a naught is the radial function, and the contribution from this is a type of constant. So because the wave function is spherically symmetric, it does not depend on theta and phi. So this is the distribution of the electron in the 1s orbital. Yes, obviously, as you move away from the nucleus, the probability goes off exponentially, the probability of finding the particle. We also check that the probability density is not directly the square of the radial function, rather it is the square of the radial function multiplied with a term r square. So this is the probability density, radial probability density. We maximized this equation and we obtained that what are the values of r at which the radial probability density is maximum. And we observed that the radial probability density is maximum at r equals to 0, at r equals to a naught, and r equals to infinite. But we further analyzed that the result that radial probability is maximum at r equals to 0 is physically invalid. The result that radial probability density is maximum at r equals to infinity is also physically invalid. And the only valid solution was that the radial probability density is maximum at a distance r equals to a naught, where a naught is the Bohr's radius having the value of 0.53 angstrom. Yes, do reply. This we have discussed. Yes, sir. And this was the variation of radial probability density with R. The probability density has a peak at a naught. But yes, there is a fair probability of getting the electron even away from a naught. And also we mentioned that the average value of the average distance of the electron from the nucleus is basically more than a naught, 1.5 a naught. One more thing is written that the distribution of the probability density is asymmetric about a naught.
the distribution on both sides of A naught is not symmetric. It is asymmetric about A naught. So up to this, we have already done. This was one more formula which I asked to remember, that the average distance or the expectation value of R. So this is the exact formula through which we get the expectation value. But calculating this expression each time is pretty difficult. So a formula has been manipulated through which we can easily calculate the expectation value for any state just by knowing the values of n, l and m without being involved into the calculation or the integration part. Now for the first excited state, this is new that we have not discussed in the last class. For first excited state, n is 2, and for n equals to 2, you have L equals to either 0 or L equals to 1. Now when L is 0, M is also 0, but for L equal to 1, there are 3 values of M. Better we once again write it for ourselves. For the first excited state, when n is 2, the value of L is basically 0 to n minus 1. So this is 0 and 1. So when L is 0, M is also 0. But when L is 1, M takes the value minus 1, 0, plus 1. So basically for n equals to 2, what are the combinations we can think about? That n is 2, L is 1, L is 0, and M is also 0. N, L, M. N is 2, L is 0. When L is 0, M is also 0. N is 2, L is 1. If L is 1, M can have a value minus 1. N is 2, L is 1, M can have a value 0. N is 2, L is 1, M can have a value plus 1. So total how many states are possible? 4 for n equals to 2. This is which state? Yes, that means it is 2s. Isn't it? 2s state. This is which state? All these are 2p states. In all these, L is 1. So they are 2p states. But isn't it that there are 3 different states? That means some type of degeneracy is present here. We will discuss this. Just keep in mind, because as I said that we are right now concerned with the s orbital. We will later on come to this p orbital also, but right now we have discussed 1s. We are right now interested in the s orbital. So let us think for 2s. So for 2s, for the 2s state, when n is 2, L is 0, the 2s state, radial probability density R square, and then R20 mod square. We have all these values. By putting, we get the probability density having this value. This is the probability density for the 2s state.
This is the probability density for the 2s state. Okay. Yes. Is it okay? Yes, sir. So for n equals to 2, L is 1, and for n equals to 2, L equals to 1, that means for the 2p state, this is the probability density. The functions are plotted below. अभी फिर रिपीट कर रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं, लिस्ट में आ गया तो जमा कर लिए, अभी यहां पर है. अब चेक करके देखो तो इस पीआर में इसका वैल्यू कब जीरो होगा. इसका वैल्यू कब जीरो होगा. हम ये फंक्शन को थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं. Yes, just focus on this one only. This is our 2s state. When will this probability become zero? Sir, when r equals to 0 or r equals to twice of a naught or r tends to infinity. R equals to 0. So r equals to twice of a naught R is twice of a naught. when r tends to infinity. R tends to infinity. Okay. Again, these two are not physically acceptable solution. So the radial node is at r equals to 2a naught. Agree? Do remember, हाँ, थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना होगा. इसका प्लॉट नहीं है मेरे पास बना हुआ. रेडियल नोड कहां पर है? r इक्वल्स टू 2a नोट. फिर से क्या हम d बाई डी आर ऑफ पी आर को 0 से इक्वेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम हो रहा है ये मिलेगा. Yes, sir. मिलेगा. तो प्रोबेबिलिटी कहां मैक्सिमम हो रहा है ये मिलेगा. और डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो. माने बेसिकली ये हमको पोजीशन ऑफ एंटी नोड देगा. तो ये आपको मिलेगा एट ए नोड एंड एट 5 ए नोड इफ यू कैलकुलेट दिस. Correct. So we have located the position of radial node. We have located the position of radial antinode or the positions of maxima. Correct. Now, can you tell me that from Bohr's theory, what was the radius for the first excited state? That means n equals to 2 के लिए रेडियस कितना होता है? E naught is minus, sorry, En is minus 13.6 by n square electron volt. And what is the value of Rn? In terms of A naught बता दो. ये वाला याद होना होगा. हाँ, बोर्स थ्योरी से रेडियस
और बोर्स थ्योरी से एनर्जी. For the first excited state, that is for n equals to 2, the radius predicted from Bohr's theory is 4 a0. The radius predicted from Bohr's theory is 4 a0. Now, let me plot this. Let us plot the graph. इसको याद रखिए. इसको याद रखिए. In y-axis you have probability, and in x-axis you have the distance from the nucleus, r, and this is our p function of r. कैसा बनेगा बताओ तो ग्राफ. प्रीवियस वाला एक बार दिखा दे रहे हैं आपको. ये 1s के लिए प्रोबेबिलिटी का प्लॉट था. अब यही प्लॉट 2s के लिए 4 है. Yes, I'm waiting for the reply. कनेक्टेड है ना हम लोग. तो कैसा बनेगा देखो. इसको तो देख ही रहा है, यहां से देखना है. r0 पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है. तो 0 से स्टार्ट होगा. r जब इंफिनिटी होगा फिर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा. मैक्सिमम कहां पर हुआ है? और 2a नोड पर एक तो नोड है, फिर मैक्सिमा हुआ है कहां पर? 5a नोड पर. तो बस इतना सारा चीज तो हम रेडी कर दिया था आपको, इसी के बेसिस पर बताना था. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. This is how it looks like. So, at what value of r is it maximum? A naught. This is at 5 a naught. So this is a naught. This is 2 a naught. This is a naught, this is 2 a naught, somewhere it is 3, 4, this is 5 a naught, and so on. Now, two things to be noticed here. As per Bohr's theory, the electron was likely to be found at? The electron was likely to be found at 4 a naught. But according to Schrodinger's equation, the electron is likely to be found at? No, both a naught as well as 5 a naught. A naught पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है और 5 a naught पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है. तो ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का रिजल्ट है, यहां पर क्वांटम अप्रोच और बोर्स थ्योरी एग्रीमेंट में नहीं है. या कह सकते हो कि बोर्स थ्योरी इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो प्रिडिक्शन दिया था, दैट इज नॉट गुड इनफ.
For ground state, it was good enough that the probability was maximum at A naught. And Bohr's theory also predicted the ground state radius to be A naught. But for the first excited state, they are not in agreement. इसमें एक बात और देखिएगा जो हमने आपको यहाँ नहीं बताया. एक तो हमने आपको ये बता दिया कि हाँ ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हमको पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिल जाएगा. पोजीशन ऑफ नोड हम इक्वेशन देख के ही पता कर रहे हैं. इसमें एक चीज और ध्यान दोगे, बनाते समय ड्रॉ कर दिए हैं. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इजंट इट कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस जगह के प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है? यस सर. लेकिन अभी हम आपको माने ये मैथमेटिकली नहीं शो किए हैं, उसी इक्वेशन से आएगा. जैसे 2 पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा निकलेगा कि ए नॉट और 5 ए नॉट पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो उस दोनों जगह पर वैल्यू रख के प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि नहीं? मैक्सिमा मिनिमा याद करो. यस सर. तो आपको मिलेगा कि 5 ए नॉट पर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, क्या ये 2s का प्रोबेबिलिटी है? यस सर. Is it that the probability of 2s depends on theta and phi? फिर फंस गया तुम लोग. नो सर. Is it that the probability of 2s, or better I say, yes, the probability of 2s depends on theta and phi? No sir. We are very much sure that whenever we are talking of s orbital, there is no theta and phi dependence. Agree? Yes sir. Yes, sir. 1s ऑर्बिटल को थोड़ा सा इमेजिन किए थे, एटम को. 1s ऑर्बिटल में एटम को इमेजिन किए थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है. कैन यू इमेजिन 2s ऑर्बिटल? 2s ऑर्बिटल को आप इमेजिन कर पाइएगा? स्फीयर रहेगा और बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा. ट्रू, वेरी करेक्ट. इसको जस्ट थोड़ा प्रॉपरली समझने के लिए आप जितना प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, आगे का ऑर्बिटल का एनालिसिस भी कंफर्टेबली ठीक होगा. Suppose this is the nucleus. This is the nucleus, and is it still spherically symmetric? Is the wave function spherically symmetric? What type of function will it be? नो, यहाँ पर कहीं पर एक सोचने का एरर है, लेकिन आज सुन लेने से क्लियर रहेगा. क्योंकि थीटा और फाई डिपेंडेंस नहीं है, द फंक्शन इज स्टिल स्फेरिकली सिमेट्रिक. सोच के देखो, थीटा और फाई है ही नहीं, तो कौन सा थीटा पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, कौन सा फाई पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा? ऐसा तो है नहीं. तो न्यूक्लियस से
किसी भी डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी एक जैसा है। एग्री? हाँ ठीक बोल रहे हो, लेकिन बात सोच के देखो, नेचर स्फेरिकल है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। आर डिपेंडेंस तो है ही। क्लियर हो रहा है बात? न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर मिलेगा ये तो डेफिनेटली सोचना है, लेकिन न्यूक्लियस से किस एंगल पर? ऑल एंगल्स आर पॉसिबल इक्वली। ये बात समझ आया? नाउ इफ वी ट्राई टू ड्रॉ इट, कैसा होगा देखो। कहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बोले थे? पहला ए नॉट आर इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट पर, और दूसरा कहां बोले थे? 5 ए नॉट। 5 ए नॉट पर। रेडियल नोड कहां पर है? 2 ए नॉट पर। तो रेडियल नोड जो है वो 2 ए नॉट पर है। मान लो कि ये डिस्टेंस 2 ए नॉट वाला डिस्टेंस है। तो कैसे सोचेंगे देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ए नॉट पर है ना ज्यादा। ए नॉट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इन सब जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? है। इन सब जगह पर मान लो ये 5 ए नॉट है, फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी है कि नहीं? यस सर। 5 ए नॉट के बाद एकदम है। 5 ए नॉट के बाद भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं? करता यस है। सर। वेव फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो 5 ए नॉट के बाद भी मिलने का प्रोबेबिलिटी है। कहां पर ज्यादा है ये ड्रॉ हो रहा है खाली। तो भी ये बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज सपोज ए नॉट एंड दिस इज सपोज योर 5 ए नॉट। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ लेयर समवेयर हियर जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है या जीरो है? व्हाट इज दैट डिस्टेंस? 2 ए नॉट। नाउ इमेजिन, हम इसका डायग्राम आपको दिखाएंगे, थोड़ा कंप्यूटेड डायग्राम। लेकिन यहां पर जो ग्रीन वाला लाइन अभी हम बनाए थे, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है, व्हाट शेप इज दिस? Sphere. What shape is this? This is sphere. Just give me 1 minute. Hello. Good evening, Father. Yes, good evening, Father. Yes. So, what is the shape you are imagining where the probability of getting the electron is low? Sphere. It is a sphere. So, ये जो एक बात बोल रहे थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, याद करो कि रेडियल नोड इज नॉट अ पॉइंट, इट्स अ सरफेस। यस क्लियर सर। हुआ ये बात? यस। ये रेडियल नोड जो है सरफेस है। पूरा यहां पर एक सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है। जो कितना डिस्टेंस पर है?
2 एनोड डिस्टेंस पर। समझ पाए? थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से समझ आए ऐसा एक इमेज आपको दिखाते हैं। देखिए, यही इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है। याद आ रहा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। यस, कैन यू सी दिस? ये थोड़ा सा उल्टा है और ओरिएंटेशन चेंज करने का कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। डजंट मैटर, दिस इज समझ में आ जाएगा। ओ, इमेज आया है क्या स्क्रीन पर? यस सर। ये देखो, ये 1s है। समझ में पा रहे हैं? ये 1s है। क्लियर? यस। अब ये देखो 2s, और ये बीच में देखो जगह जहां पर डॉट्स कम है, दिस represents the radial node, which is a sphere. It's a three-dimensional thing. So radial node is a surface. Correct? What was the formula for radial nodes we have? How many radial nodes? n और l के टर्म्स में रेडियल नोड्स का फॉर्मूला बताए थे ना? n minus l minus 1. n माइनस l माइनस 1। अभी n इक्वल टू कितना लिया था? सर 2. 2। तो रेडियल नोड्स का नंबर कितना हुआ? 1। यहां पर एक क्वेश्चन दिया था, वैसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिगर 4.24 shows a cross sectional sketch of any ns orbital in the xy plane. Identify the orbital. तो कितना सारा रेडियल नोड है? देखिए, 3 रेडियल नोड है। तो कितना n के लिए ये होगा? 4. n equals to 4. So the number of radial node is 4 minus l कितना? 0. l कितना? 0। s ऑर्बिटल है ना? 0, sir. It is S orbital. Yes, because it is s, l is always 0 and minus 1. So there are 3 radial nodes. So from the picture we can identify that it is a 4s orbital. ठीक है, समझ पाए? देखो दोनों कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक और डायग्राम है, देखिए, और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एक और डायग्राम रखें, और सब केमिस्ट्री बुक से है, आपको रिपीटेड बता रहे हैं। देखिए, ये भी एक डायग्राम है। नीचे में प्रोबेबिलिटी भी है, उसका ग्राफ भी है, और यहां पर उसका डायग्राम भी बना हुआ है। 1s इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, 2s, 3s, और उसी का थोड़ा सा कॉन्टूर प्रोबेबिलिटी बनाया गया है। 1s बीच में इसको कट करके दिखा रहा है कि यहां पर एक तो रेडियल नोड है। ई वाला डायग्राम पे फोकस करो, तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देख लो, यहां पर खाली जगह दिख रहा है, यहां भी खाली जगह दिख रहा है। दीज आर द रेडियल नोड्स। दीज आर नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द nucleus. The distribution of electron around the nucleus. Yes, is it okay? Any query, anyone? खाली ये वाला पोर्शन आंसर में नहीं लिखा हुआ है, आपको जो आंसर मिला है उसके साथ इसको जोड़ लीजिएगा थोड़ा सा अपने से। ठीक है? यस सर। अब लास्ट क्या बच गया?
हाइड्रोजन एटम में ही क्या बच गया? सर स्फेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट। स्फेरिकल हार्मोनिक्स। एंगुलर पार्ट अभी तक हम लोग का ड्यू है, एंगुलर पार्ट ड्यू है, और बिना एंगुलर पार्ट के अभी तक पढ़ लिए ओनली बिकॉज कि एस ऑर्बिटल का एंगुलर डिपेंडेंस नहीं था। No angular dependence. Yes, no angular dependence. That is why we were in a position to discuss the wave function even without discussing the angular part, only the s orbital. But you cannot discuss the p orbital or the d orbital without analyzing the angular part. Correct? So let us just have that angular part. 1 minute. Yes. Can you see this page again? We have already shown you this angular section earlier also, but not analyzed. Correct? Yes, sir. So, what are these angular functions? L0, M0. Angular depends only on L and M. तो N नहीं लिख रहे हैं. एंगुलर लिखते समय खाली L और M. एनर्जी रेडियल पार्ट लिखते समय खाली N और L. लेकिन कंप्लीट वेव फंक्शन लिखते समय सब चाहिए. So L equals to 0, M equals to 0. This is the angular part. L equals to 1, M equals to 0. This is again the angular part. L1, M1, L1, M minus 1. वैसे L equal to 2 के लिए, सिर्फ L equal to 2 के लिए कितना सारा फंक्शंस है? 5. अच्छा ये बताओ तो इस L equal to 2 के लिए N कितना है? तो 3. 3. इतना टाइम काहे ले रहा तुम लोग? L equal to 2 के लिए N का वैल्यू है 3. जो एनर्जी है हाइड्रोजन एटम का -13.6 जेड स्क्वायर. फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज 1, सो -13.6 by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी जो है वो कौन सा क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा है? Principal quantum number m. Energy does not depend on L and m. L and M. तो क्या इन सब L के लिए N3 ही है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या इन सब स्टेट्स का एनर्जी सेम होगा? Yes, sir. लेकिन सब वेव फंक्शन एक दूसरे से अलग अलग है. Yes, sir. Yes, sir. तो कितना है डिग्री ऑफ डीजेनरेसी? 5. 5. ठीक है, इस सब बात को माइंड में रखना है कि डिग्री ऑफ डीजेनरेसी हम लोग का क्या है. ठीक है, एक छोटा सा खाली काम और करेंगे.
इसको एक्चुअली इस जगह पर पढ़ना इजी है क्योंकि यहाँ पे हमको डायग्राम बनाने का टूल्स ज्यादा अवेलेबल रहता है. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस p orbital. p orbital. For p orbital, L is 1. So the p orbitals are obtained from the following spherical harmonics. L0, इन सब में L1 है मतलब p ऑर्बिटल है, लेकिन L0 L1 के लिए M0 भी हो सकता है, L1 के लिए M1 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिजेनरेसी 3 है. सो दीज आर द 3 डिफरेंट स्टेट्स, बट ऑल ऑफ द स्टेट्स विल हैव द सेम एनर्जी. ठीक है, समझ पा रहे हो? यस सर. अब थोड़ा सा फोकस करो इसके ऊपर, थोड़ा सोचना है. हाँ, थोड़ा आप कांस्टेंट एफर्ट बनाए रखिएगा तभी समझेंगे कि क्या हो रहा है. इसके लिए हमको बताओ. L equals to 1, M equals to 0. L equals to 1, M equals to 0. हम लोग p ऑर्बिटल के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन सोच रहे हैं, बाकी दोनों और भी है. Now suppose I want to imagine this. I want to imagine this spherical distribution. ये spherical distribution हमको सोचना है, इमेजिन करना है कैसा होगा. This is x axis, this is z axis और ऐसे है y axis. Yes. यहां पर हमने रखा है y10 को. y10 का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक, जस्ट सोचिए, हमको 1 मिनट का लिए टाइम दीजिए. यस. कैसा बनेगा ग्राफ? यस, कैसा प्लॉट बनेगा?
एनीवन? किसी ने सोच लिया? अभी खाली स्फेरिकल हार्मोनिक्स सोच रहे हैं, हाँ, अभी इसमें रेडियल पार्ट नहीं है. इज इट ऑडिबल? Yes, sir. In this spherical coordinate, where is theta equal to 0 degree? In spherical polar coordinate, which position is theta equals to 0 degree? Sir, at the origin. नहीं, at the origin बात नहीं है. So y-axis, sir. Y axis और Z axis? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के साथ का एंगल एजीम्यूथल एंगल ये फाई, और ऊपर जब हम लोग जेड से घूमते हैं वो ना थीटा होता है. Yes, sir. सो वेयर लाइज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री? Z axis. So this is theta equals to 0 degree and cos 0 degree is maximum. So in this direction the probability is maximum. Now as you turn down from here, theta is increasing or decreasing? Increasing, sir. Increasing. So cos theta is, and so the angular wave function or the probability is decreasing. So if I draw a line to show the magnitude of the probability, will it somehow look like this? एक लाइन अगर प्रोबेबिलिटी का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है तो हम दिखा रहे हैं कि लाइन छोटा हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है. Yes, sir. यहां प्रोबेबिलिटी 0 बिकॉज थीटा इज Pi/2. 90 degree. इसके नीचे आफ्टर 90 डिग्री it will be again gradually increasing and it will become maximum here. What about this side? थीटा कहां तक जाता है ज्यादा से ज्यादा? 0 to Pi. पाई. तो पाई तक तो हम आ गए हैं. इसके बाद Some mirror image as cos is an even function. mirror image as cos is an even function, but does theta have a value more than pi? No, sir. सोचो सोचो जल्दी. अच्छा ये बताओ कि एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल कौन है? Phi. यहां फाई का क्या बात है? फाई कितना है? फाई तो है ही नहीं. करेक्ट. अगर फाई है ही नहीं तो फाई का ऑल पॉसिबल वैल्यू लेना होगा. 0 to 2 पाई. समझ पा रहे हो?
फाई नहीं प्रेजेंट है, फाई स्पेसिफाइड नहीं है, या फाई का टर्म वहां नहीं है, मतलब फाई का ऑल पॉसिबल वैल्यू अलाउड है। तो फाई का अगर ऑल पॉसिबल वैल्यू अलाउड है तो क्या होगा, देखो इसको अगर समझेंगे आप, तो मान लो थीटा का ये कोई वैल्यू है, थीटा के किसी वैल्यू पर ये प्रोबेबिलिटी का मैग्नीट्यूड है, यस सर। और थीटा के इस वैल्यू पर फाई का सब वैल्यू अलाउड है। Yes, sir. Isn't it that it will be a cone? यस सर। इमेजिन हो रहा है? यस सर। So for a given theta, all values of phi are possible. So that will trace a cone. Agree? यस सर। तो क्योंकि फाई का सब वैल्यू अलाउड है, इसलिए इधर वाला साइड भी जनरेट हो जाएगा 0 से पाई थीटा के लिए ही। करेक्ट? एंड इफ यू जॉइन देम, that means you draw the locus, will it look like this? Something lobe like of structure, L-O-B-E. Yes, sir. यस सर। मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी, यहां पर प्रोबेबिलिटी 0. इज दिस एन एंगुलर नोड? No, sir. Why not? Why The not? probability is 0. Why not? It's a lobe type of thing. It's a lobe type of structure. हम वो एरो हटा दे रहे हैं, एरो तो ऐसे ही बना दिए थे. When you remove those arrows, it is basically something drawn like this. It's a lobe-like of structure, a balloon type of structure, knotted at the end, isn't it? What is the probability of finding the electron here? 0. 0. Isn't it that it is an angular node? Yes. And what is the Yes. shape of that angular node? No, not point. What is the shape of the angular node? Sir, it is a plane. node plane. Yes. Which plane is this? This is which direction? XY X. plane. XY plane. This is Z. And so our nodal angular node is a plane. And which plane is this? It's a XY plane. Can you imagine? इससे अच्छा तो हम नहीं बना सकते. बीच में एक प्लेन है जहां पर उसके मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है. It's an angular node. Now, one more interesting thing. In spherical polar coordinate, what can you write? How can you write cos theta in terms of XYZ? Cos theta को क्या लिख देते हो in terms of XYZ? थीटा का कन्वर्शन into XYZ. Cos theta is Z by R. याद आता है spherical polar coordinate? Yes, sir. So cos theta is Z by R. Z coordinate. इस डायरेक्शन में Z कोऑर्डिनेट का वैल्यू सबसे ज्यादा है. जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं Z कोऑर्डिनेट, Decrease करो. यहां Z कोऑर्डिनेट, 0. तो इससे सोचो या इससे सोचो, एक ही चीज आएगा. तो ये y10 जो है, इसका डिपेंडेंस कौन सा कोऑर्डिनेट पर है?
कौन सा कोऑर्डिनेट पर है? दैट इज वाई दिस इज आवर पीजेड ऑर्बिटल। और पीजेड ऑर्बिटल का शेप डंबल पढ़े थे, यस सर। मिला ना सेम चीज। देखो हम कहे थे कि पहुंचोगे जहां पर ना, उसमें से बहुत सारा चीज पहले से नोन है, लेकिन पहले हम लोग कभी ये नहीं पढ़े थे कि पीजेड का शेप डंबल ही क्यों है। अभी हम लोग उसका रीजन भी जाने हैं कि व्हाई और हाउ इट इज डिसाइडेड द शेप ऑफ द जेड ऑर्बिटल विल बी लाइक दिस। ये डिसाइड कैसे होगा, समझ आया कि नहीं? बोलिए। यस सर। यस, दिस इज रेडियल नोड। अब जरा सा एक छोटा लास्ट काम करेंगे तो एक कवर हो जाएगा आज। उसके बाद खाली px py बचेगा जो कल पढ़ेंगे। ये इसको रहने देता है, आपको हेल्प होगा समझने में। जस्ट वन मोर थिंग, इसी में हमको खाली एक बात बताओ, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है दिस वन, ये कौन सा पार्ट है खाली? एंगुलर पार्ट। Spherical harmonic. हाँ, एंगुलर पार्ट y10। इस y10 का रेडियल क्या होगा बताओ तो, सिंबल में वैल्यू नहीं पूछ रहे। y10 फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, फॉर्चुनेटली इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फाई। इसके साथ एक r भी आएगा ना, जो हमारा कंप्लीट फंक्शन बनाएगा। यस सर। तो इस y माने इस स्फेरिकल हार्मोनिक के कॉरेस्पॉन्डिंग r बताओ तो, लेबलिंग क्या होगा r का? R21। R21। देखो तो सब लोग ठीक है? L1 है तो n को 2 होना पड़ेगा। एग्री? Yes, sir. हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहा है। Yes, sir. So is it like 210? यस सर। R21 जो है उसको जस्ट एक बार देखना पड़ेगा हम लोगों को, रेडियल फंक्शन में जाके देखते हैं हमारे पास वाला पेज है कि नहीं, या तुम लोग में से किसी के पास है रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन तो यहाँ नहीं पढ़ाए थे ना, यहाँ इंपोर्ट नहीं किए हैं। रेडियल पार्ट इक्वेशन, रेडियल पार्ट इक्वेशन तो है बोल रहा है। No, this one. यस, इसको खोज रहे थे। देखो कौन सा वैल्यू खोज रहे हैं अभी हम? आर का R21 खोज रहे हैं क्या? आर का यस सर। आर का 21 ई वाला है क्या? यस सर। आर का 21 को अगर देखोगे तो आर का 2 डिपेंडेंस है, एक ई वाला आर और ये एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है? यस सर। लास्ट सोचना है आपको एकदम एफर्टफुली।
अभी कैलकुलेशन कर रहे थे। यस दिस वन। अब यहां पर बताओ, इसमें डिपेंडेंस बोल रहा है, आर पर डिपेंडेंस है, ई टू दी पावर माइनस आर पर डिपेंडेंस है, और कॉस थीटा या जेड बाई आर पर डिपेंडेंस है, कॉन्स्टेंट्स छोड़ रहे हैं। बोलिए, क्लियर हुआ बात? साई डिपेंड्स ऑन आर, ई टू दी पावर माइनस आर एंड कॉस थीटा। Yes, sir. एल कितना है बोले हैं? 1. नहीं, हम एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि रेडियल नोड कितना होगा। रेडियल नोड कितना होगा? n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 0. 0। माने कोई रेडियल नोड नहीं होगा। एग्री ना? Yes, sir. लास्ट क्या करने जा रहे हैं देखो, सिर्फ एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से भी टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा, सिर्फ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा। अब दोनों को मिला रहे हैं। इस ऑर्बिटल में जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन यहां है। Here we require that. So this is z axis, this is our x axis. For the z orbital it is a lobe like of structure. yes no बोलते जाओ, नहीं तो Yes, sir. समझ नहीं पाएंगे। The same in the downside also. इस Yes, sir. एंगुलर के साथ रेडियल को मिलाते हैं। रेडियल में कोई नोड नहीं है, मतलब बेसिकली वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है। दैट मीन्स इन सब जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है. कम हो रहा है। एक्सपोनेंशियली Yes, sir. डिकेइंग फंक्शन है ना, Yes, sir. तो Yes. प्रोबेबिलिटी कम हो रहा है। कोई रेडियल नोड है नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन जिस डिस्टेंस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस को कौन गिरा दे रहा है? स्फेरिकल हार्मोनिक्स गिरा दे रहा है। जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है वो कह रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस नहीं है। इसी लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस है, लेकिन इस लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस है वो तो सही है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना कि इस लोब के अंदर कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा है? What the question? लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने का, I repeat the question. The probability of finding the electron is basically inside the lobe, but the next question is at what distance from the nucleus inside the lobe the electron is likely to be found? Yes, sir. तो डिस्टेंस का जानकारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। Yes, sir. आया समझ में? तो इस दोनों के मिलाकर, इसीलिए हमने इसका प्रोबेबिलिटी प्लॉट को दिखाया कि अच्छा कोई रेडियल नोड नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्लोज टू द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन डॉट्स विल बी मोर डेंस, and as you move away from the nucleus the electrons dots will be feeble. Close to the nucleus electron dots will be more, away from the nucleus electron dots will be feeble. No electron dots here because the angular probability suggests that there is no possibility of finding the electron at these locations. For a state recognized by
the quantum numbers 2, 1 and 0. बोलो. Yes, sir. ठीक है. अब एक खाली x ऑर्बिटल और y ऑर्बिटल, सॉरी x और y ऑर्बिटल बचा हुआ है. इसको बताने से हम लोग का मोर और लेस हाइड्रोजन एटम का काम हो जाएगा. और कुछ एडिशनल हम लोग कभी देखना चाहेंगे तो देख सकते, लेकिन हम वहीं तक आपको पढ़ाएंगे. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो हम अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन हम लोग को वो सब सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए. लेकिन यहाँ तक हमारा सिलेबस है, यहाँ तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग का सिलेबस है. जस्ट एक तो केमिस्ट्री से हम लिए थे, हम खुद भी उसको नहीं देखे हैं, तो ये उसी का समरी है, इसको हमने आपको समझा. हाँ, यस. हाँ, हाँ, मैंने एकदम वैसा ही होगा. हम भी यही समझाना चाह रहे हैं कि उस मैंने एंगुलर के साथ रेडियल को अब ओवरलैप कर देना है. समझ पाए क्या बोल? लेकिन रेडियल नोड नहीं है उसमें, उसमें कोई पोजीशन नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस 0 है. वो रेडियल नोड नहीं है. जहां डाउट हो रेडियल पार्ट को अलग से एनालाइज कर लो और फिर वापस लाके एंगुलर के साथ मर्ज करो. ठीक है ना? देखो, हमारा आइडिया पढ़ाने का एक ही पर्पस रहता है कि हम आपको वहां तक पहुंचाए कि कुछ तुम खुद भी सोच सको, मेरे भरोसे ना रहो. यही हमारा पर्पस रहता है कि ठीक है, इतना बता दे कि अब आप सोच पा रहे हैं. तुम हमसे कुछ पूछ पा रहा है, मतलब तुम यहाँ तक कम से कम सोच रहा है कि अच्छा क्या हुआ. ठीक है? सो यू आर फ्री टू डू दैट, बट एज आई मेंशन, all these analysis you will get more in a chemistry book than in a physics book. In an organic chemistry books you will get in details, or you can definitely get this on some online websites also. Correct? ठीक है. कल क्या क्या नोटिस तुम लोग को दिया गया है क्लास के लिए? Sir, there will be both practical and theory class. यस, तो बोथ थे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस में. आपको ये बता दें, हम थोड़ा डिटेल कर दें. देयर विल बी 3 theory classes consecutively, 10, 10, 50, 11, 40. Okay? Do you have a minor also tomorrow? Yes or no? Yes, sir. At what time? 12:30? 12:30, sir. Yes, so you will have that class, and after that you will have your lab, but not the computer lab, the general lab for the electronic section that you were doing. Okay? Yes, sir. ये बोलने का मतलब समझ पाया ना? ये बोलने का मतलब ये है कि सुबह ही ठीक से खा पी के शाम तक के लिए व्यवस्था करके आइएगा, क्योंकि आपका 4 और 3 7 क्लास होगा लगातार. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके? Yes, sir. ओके, फाइन. मीटिंग एंड कर रहा है. Thank you, Thank sir. you, sir. यस. Thank you, sir. यस, गुड नाइट.